When an event repeated in time. When an event repeated n time In time independent. independently. Okay. For example, Throwing a coin okay, how many times? in time. Like When we talk in example, then we forget mathematical terms, alphabet. So you can say 3 times, 4 times, 5 times, 10 times, 100 times, 1,000 times, 5,000 times. Okay. So how many times? 5 times. Okay. Then what the binomial distribution will provide us in this experiment? Uh, Probability of R equal to Probability. NCR Yeah, to no, the no, no, power no, R. no, no. What the binomial distribution will provide us in this case? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी पाएंगे किस बात की? इस एक्सपेरिमेंट में आपने कहा Getting टॉसिंग अ head. कॉइन, गेटिंग हेड. Yep. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. Head 2 times. हेड Exactly 2 times. एग्जैक्टली 2 टाइम. it will tell you probability of occurrence of head twice out of 3 5 times. repeated experiments, Yes, 3 sir. independently repeated experiments. अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, बताना कि इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करेगा कि नहीं. Yes. ताश की गड्डी से हमने 5 पत्ते निकाले विद रिप्लेसमेंट से. क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 4 पत्ते ब्लैक कलर के हों? क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करेगा? Yes, sir. तो इसमें हमारा कैसे हेल्प करेगा ये बता दो. क्या हम एक्स लेंगे और कैसे उसको करेंगे? X equal to 5 होगा. एक्स x equals to 5. What is x? X is black cards. ब्लैक कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड की काउंटिंग. Black card की counting. ब्लैक शर्ट और ब्लैक शर्ट की काउंटिंग में फर्क है कि नहीं? Yes, sir. तो x इज काउंटिंग ऑफ ब्लैक कार्ड और इट इज ब्लैक कार्ड. Counting of black cards. ओके. सो x इज x is number of black card. So you are saying that x follows binomial distribution. So there are 2 parameters of binomial distribution. One is n and the second is probability of success. So do you know these 2 terms in this example? Yes, sir. N is N equals equal to to 52. 52. Okay. What is possible value of x? So repeat the question. आप ही ने बोला था कि एक व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? योर 0, एक्स. 0, ओके. 4, 0, 1, 0, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 3, 3, 4, 5. Then what is the small n? This is 52. Yes, sir. Yes, sir. Huh? 52. No. This small n is
the number of repetition of the maximum possible value of this x. 5 This is not the population size. 5 होगा. You are talking about this one. Here there are 52 and you are drawing 5. Okay, this is population whole and you are taking sample drawing. So your small n is this one, not this one. Okay, there is no need if it is repeated with replacement case. कोई जरूरत नहीं है कि इसमें कितना रखा है ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी. So what is n? 5. Now what is p? Probability of success. Success means what? Getting number of black cards. Again, be clear. What you said? Getting Number Black of card. number of black. number of black card. 4 बजे हम वहीं पे आएंगे, 5 बजे गेस्ट हाउस में आएंगे. हाँ, गेटिंग नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड. क्या इसका कोई लॉजिकल मीनिंग निकल रहा है? गेटिंग नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, कोई इस सेंटेंस की मीनिंग निकल रही है? और आप कह रहे हो प्रोबेबिलिटी ना, दिस इज प्रोबेबिलिटी. P बराबर प्रोबेबिलिटी. इस सेंटेंस की कोई मीनिंग निकल रही है? गेटिंग नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड. बोलो. आप ये जब नंबर कर रहे हो तो आपका नंबर तो कोई फिक्स ही नहीं है. आपके पास 6 पॉसिबल नंबर हैं, तो किसका बोल रहे हो आप ये पी? Sir, getting black card only. हाउ मेनी? सर ये अब हम लोगों को पता नहीं है, पर ब्लैक कार्ड ही सक्सेस रेट बताएगा कि प्रोबेबिलिटी. हाउ मेनी? मीन्स पहली बार, मीन्स दूसरी बार, मीन्स तीसरी बार, मीन्स चौथी बार, मीन्स 5वीं बार. एक के एटलीस्ट वन. एटलीस्ट नहीं, सिंगल वन. एटलीस्ट वन में तो कुमुलेट हो जाएंगे सब. 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, इनफाइनाइट भी होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ, जब आप कह रहे हैं तो इट मीन्स इट इज P is probability of getting event of interest at any particular point of experiment. कितने पर्टिकुलर पॉइंट एक्सपेरिमेंट के आप कर रहे हो यहां? आप एक्सपेरिमेंट के कितने पर्टिकुलर पॉइंट देख रहे हो? 5. ओके, 5 देख रहे हो. 1 2 3 4 5. और व्हाट इज दिस स्मॉल p? This is probability of event of interest. What is event of interest here? Getting a black card. So probability of getting a black card, not probability of number of black card. Probability of getting a black card at any draw.
is P. Probability of hitting a target at any shoot is P. Probability of qualifying the examination at any particular attempt is P. Now, what is the value of P? Do you know value of P in this example? हाफ सर. कितना? हाफ, क्योंकि 26/52 हो गया. 52. ठीक है. नाउ योर रैंडम वेरिएबल x follows binomial with n and p as binomial 5, ½ Okay. Now if anyone asks, find probability that 3 black card, then it is 5c3 half to the power 3 and half to the power 2. Okay. Now, if we are choosing 5 card from pack of playing card, by without replacement method, and x number of black card in sample. Now, can binomial distribution help here? No sir. Can we say that x follows binomial n and half, 5 and half? या क्या इस एग्जाम्पल में भी n इज इक्वल टू 5 है? यस सर. है. क्या इस एग्जाम्पल में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड एट एनी ड्रॉ 1/2 है कि नहीं है? है सर. है. तो ये दोनों कंडीशन तो बाइनोमियल में फुलफिल हो रही हैं, तो हम इसको बाइनोमियल क्यों न बोलें? सर इंडिपेंडेंट नहीं है. इंडिपेंडेंट ड्रॉ नहीं है. ठीक है. तो अगर आपके ड्रॉ इंडिपेंडेंट नहीं है, आपका एक्सपेरिमेंट रिपीटिशन इंडिपेंडेंट नहीं है, तो बाइनोमियल की सिचुएशन होते हुए भी आप बाइनोमियल को यूज नहीं करेंगे. ठीक है. उस केस में क्या यूज करेंगे? उस केस में आपको इसकी साइज पता होनी चाहिए, कैपिटल N. और उस केस में हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो इससे निकालते हैं, NCN. अब यहां पे किया ब्लैक और यहां पे नॉन ब्लैक, ये भी शायद बता चुका हूं. ब्लैक आपके हैं 26, नॉन ब्लैक है 26. ठीक है. इसको हमने कहा N1, इसको कहा N2, और ये है हमारा N. जब आप इसमें से निकालोगे तो ये भी दो तरह के होंगे, या तो ब्लैक या तो नॉन ब्लैक. अब जब 5 निकाल रहे हो तो कुछ संख्या इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, जिसके भी जाए. सपोज कि इसमें x जाए तो इसमें कितनी जाएगी? स्मॉल n माइनस स्मॉल n माइनस x. इसमें x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी? ब्लैक कार्ड, तो 26 ब्लैक कार्ड है.
तो इसमें x की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन अब ये बाइनोमियल नहीं हुआ। अब कहेंगे n1 cx n2 c n minus x टेक्स वैल्यू 0, 1, 2, लेकिन ये अंत में स्मॉल n जो भी है ये हमेशा इसके संख्या से आपका बढ़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 ही ब्लैक कार्ड होते, तब ये कहां तक जाता? 3 तक। तो ये हम n तक नहीं, जरूरी नहीं है कि हम n तक कब जाएंगे, जब हमारा n इन n1 से बड़ा हो, तब तो n तक जाएगा, अदरवाइज n1 तक ही जाएगा। और इसको कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या हाइपर ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ सिमिलरिटी है क्या? या कोई पूछे कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में डिसिमिलरिटी क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंस। Independence. And everything is same. The only difference is that events are independent or not. If they are independent, then we use binomial distribution for finding probability of counting. And we use this hypergeometric distribution for finding probability of counting again. Okay? Now, suppose we have a random variable x follows a binomial with n and p. So, px is equals to what? Px is equals to ncx p to the power x q to the power n minus x, q is equals to 1 minus p. X takes value 0, 1 up to n. Now let us calculate limit n tending to infinity probability of x. Ncx p to the power x q to the power n minus x, limit n tending to infinity. तो क्या कर दिया गया यहां भाई? बोलिए, क्या बात इसमें नई ऐड कर दी गई? अब ऐड कर दिया गया कि हमारी सिचुएशन बाइनोमियल की है, लेकिन हम ट्रायल को इनफाइनाइट बार करेंगे। हाँ, तब प्रोबेबिलिटी कैसे निकले? 1 करोड़ बार रिपीट करें। तो जब आप 1 करोड़ बार रिपीट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन निकालना संभव है क्या? सपोज करिए कि 1,20,000 सी 15,000, आपका कैलकुलेटर निकाल लेगा? 1,20,000 बार रिपीट किए, 15,000 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं, तो नहीं निकाल पाएगा। तो देखा गया कि क्या ये फंक्शन n को लार्ज कर दें, रिपीटिशन को बढ़ा दें, तो क्या हमको कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म देता है? तो हाँ, तो मैं वही आपको शो करने चल रहा हूं। तो अभी मैंने इसको लिखा, मैक्सिमाइज कर दीजिए। हेलो, अच्छा मैक्सिमाइज कर दे, सॉरी। ठीक है, तो हम इसको लिखे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x
n minus x factorial p to the power x q to the power n minus x. This is equals to n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 n minus x dot 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 O1 upon factorial x. जैसे मान लीजिए कि लिखा है 5c3, तो आप क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। यहाँ क्या लिखते हैं? 5 इंटू 3 सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और ये हुआ आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर हम इसमें कैंसिल करना चाहें तो कौन सा टर्म पक्का कैंसिल हो जाएगा? देखिए, ये जो फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 2 इसमें पूरा का पूरा इसमें से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा इतना पार्ट। इसी तरह से, और आप किसी को भी पूरा का पूरा कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसमें से कैंसिल करना चाह रहा हूं फैक्टोरियल x को, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? अगर मैं फैक्टोरियल x को कैंसिल करना चाहूं इसमें से, तो मेरा ऊपर क्या आएगा? नीचे तो n माइनस एक्स फैक्टोरियल बचा रहेगा। कोई बताएंगे हमको? बोलिए। ऊपर n माइनस एक्स माइनस 1 तक होगा और नीचे x फैक्टोरियल होगा। ओके, n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 तक होगा और नीचे x फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल की n माइनस एक्स फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल x को काटना चाह रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 होगा कि नहीं होगा इसके प्रोडक्ट में? इसके प्रोडक्ट n प्लस एक्स, n माइनस एक्स माइनस 1 तक ही होगा। नहीं, ये तो ठीक है। डिनोमिनेटर में x फैक्टोरियल रहेगा कि n माइनस एक्स फैक्टोरियल रहेगा? n माइनस एक्स फैक्टोरियल। n माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब इसमें कितने टर्म प्रोडक्ट में है, और इसको जब हम खोलेंगे तो कितने टर्म प्रोडक्ट में आएंगे? यहां से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं हेल्प के लिए।
जैसे वो किताब दे देना गुप्ता कपूर वाली में से, वो निकालना, तो बाइनोमियल टेंड्स टू नॉर्म, वो पॉइसन। क्या इसमें उतने ही टर्म हैं जितने इसमें टर्म हैं, ये अलग अलग हैं? कहाँ गया इनका एक्सपेंशन? कहीं और खोला है ना इन्होंने एक्सटेंशन? नहीं, बाइनोमियल टू पॉइसन, बाइनोमियल से पॉइसन ना, ये तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ठीक है। एन एक्सटर्नलिंग फार्मूला से इन्होंने कर दिया है, लेकिन हम तो 1 माइनस एक्स, हाँ, अपॉन फैक्टोरियल एक्स। अच्छा, एन वाला कट जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल एक्स बचेगा। ओके, सॉरी। और ये हो गया p के पावर x, q के पावर n माइनस एक्स। इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस x माइनस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 up to so on, and this is equals to p2 into p to the power x, q to the power n minus x. This is equals to n ठीक है। या इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ एजम्पशन लिया जाए। एजम्पशन नंबर 1, let n into p is finite and equal to lambda। क्योंकि हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक ले जा रहे हैं n को ना, तो हम लोगों ने एक चीज एज्यूम किया कि n इंटू पी जो है ये इन्फिनाइट नहीं होगा, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये लैम्डा के इक्वल रहेगा। अब आप इससे p इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई n कह सकते हैं। अब ये हुआ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस x माइनस 1। यहाँ पे इसको खोलने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल x को। p इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई n होल टू द पावर x इंटू 1 माइनस लैम्डा बाई n होल टू द पावर n माइनस x।
This is equals to n into 1 minus 1 by n. यहां से भी एक n, यहां से भी एक n, अभी मैं यहां लिखूंगा बाद में 1 minus 2 by n, 1 minus x plus 1 by n. अब यहां से कुल कितने n हमने कॉमन कर लिए? या n n n कॉमन हुआ कि कम हुआ? मतलब n नहीं, कुछ और शायद एक सर। x टर्म कॉमन हुआ। हाँ, कुल कितने n कॉमन हुए? x। तो यहां हो जाएगा n टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x lambda upon n to the power x 1 minus lambda upon n to the power n 1 minus lambda upon n whole to the power minus x। अब क्या हुआ? ये टर्म कैंसिल। सर वहां पर इन माइनस एक्स प्लस 1 होगा ना? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे प्लस उसका पहले से 2 स्टेप यहीं पे ना। हाँ, वो वहां पर उसका पहले प्लस होगा ना, क्योंकि 1 माइनस इन माइनस एक्स n माइनस एक्स, इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो n माइनस एक्स, n माइनस एक्स प्लस 1 जोड़ने से एक कम, माइनस करते हैं तो कम हो जाता है ना। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो बेटा। तो यहाँ माइनस हो गया ना। अब ठीक है, ओके। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी px, सो इट इज लिमिट। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं भाई, बताइएगा। आप लोग तो मैथ वाले हो तो लिखने में भी डर लगता है। 1 माइनस 2 बाई n 1 माइनस x माइनस 1 बाई n अपॉन फैक्टोरियल x लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस लैम्डा बाई n टू द पावर n लिमिट। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। लिख सकते हैं ना? ओके। तो ये पूरा का क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 माइनस 2 बाई सब में डिनोमिनेटर में है n। ये कितने के बराबर होगा? e की पावर माइनस लेमडा। e के पावर माइनस लेमडा। कुछ और गड़बड़ होगा। e के पावर माइनस लेमडा, ओके। और p, एक लेमडा के पावर x कहीं से आएगा भाई। और ये टर्म लेमडा के पावर x कहाँ चला गया हमारा? 1 माइनस p, ओके। 1 माइनस, वो ऊपर जहाँ पे वहां पे लेमडा बाई n की पावर x था, वहां पे कट की। हाँ, यहाँ लेमडा का पावर x छूट। n से फ्री है तो लिमिट लगेगा नहीं।
तो ये क्या हो गया, लेमडा के पावर x अपॉन फैक्टोरियल x e के पावर माइनस लेमडा। तो क्या मिला कि इफ px इज इक्वल्स टू ncx p to the power x q to the power n minus x takes value 0, 1, 2 up to n, p plus q is equals to 1, then if n tends to infinity and n into p is finite equals to lambda, then the limiting value of x follows binomial has a different form. Other than star, and it is e to the power minus lambda, lambda to the power x upon factorial x, x takes value 0, 1, 2 up, it is now infinity. And what is x? यहां पर x क्या है? कोई बताए? चलिए, इसका x क्या था? जीरो वन टू तीन से अरे मतलब क्या था रियल लाइफ में, क्या था उसकी मीनिंग क्या थी बेटा? ये हम ये पूछ रहे हैं, वैल्यू नहीं, नंबर नहीं पूछ रहे हैं। x क्या इंगित करता है बाइनोमियल में? है? अरे भाई, अभी इतने एग्जाम्पल आप किए तो उसमें x क्या ले रहे हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले रहे हैं x। ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट कि उससे x तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी होता तो उसकी वैल्यू 4-5 कैसे होती? जरा सोचो, आप बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है x, occurrence of success. ऑकरेंस ऑफ सक्सेस भी नहीं है। कितने बार वो नंबर, इवेंट यस, नंबर है। कैसा नंबर है? नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस आकर, नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ सक्सेस है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको इन सब चीजों में। हाँ, ये भूल भुलैया में मैं बार बार यही चीज आपको रिपीट करा रहा हूं। ठीक है, तो x क्या है कि नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ सक्सेस है। ठीक है, कब? जब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। कितनी बार? n बार। अब यही x यहां भी है, तो यहां पर भी यह x क्या बताएगा? नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ सक्सेस। जो डिफिनीशन यहां है वही डिफिनीशन यहां है, वही डिफिनीशन हाइपर ज्योमेट्रिक में भी थी। बट यहां क्या हुआ कि रिपीटिशन आपका इनफाइनाइट को टेंड कर गया, अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो बात ये देता वही बात अब हम किससे निकाल लेंगे? इससे। इसका मतलब हुआ कि यह भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यह भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्यों करेगा? तो आप देख लीजिए,
फैक्टोरियल एक्स की वैल्यू जो भी हो ई टू द पावर माइनस लेमडा, ये भी आपका जब आप लेमडा की कोई वैल्यू रखोगे एनपी को फाइनाइट इक्वल टू लेमडा, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी ये नीचे आएगा। हाँ, तो ये हमेशा आपको 0 से 1 के बीच का वैल्यू देगा। और अगर आप सम करना चाहो तो मैं इसको चाहो तो इस समय चूंकि एक मैं दूसरा नोटेशन लिए हुआ हूं तो मैं इसको gx लिख दे रहा हूं। gx माने लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी px। अब अगर आप देखोगे तो समेशन gx x goes from 0 to infinity 1 आएगा and this is equals to समेशन, या मैं वैल्यू लिखता चला जा रहा हूं, लेमडा टू द पावर 0 ई टू द पावर माइनस लेमडा फैक्टोरियल 0, लेमडा टू द पावर 1 ई टू द पावर माइनस लेमडा टू द पावर 1 ई टू द पावर माइनस लेमडा अपॉन फैक्टोरियल 1, लेमडा टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 ई टू द पावर माइनस लेमडा अप टू इन्फिनाइट। ई टू द पावर माइनस लेमडा कॉमन है, बाहर ले लिया, 1 प्लस लेमडा अपॉन फैक्टोरियल 1, लेमडा अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये हो गया ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू ई टू द पावर लेमडा ई टू द पावर 0 बराबर 1। ये भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है जो डेराइव हो रहा है कहां से, बाइनोमियल्स की सिचुएशन से, and it is called Poisson probability distribution। ये भी डिस्क्रीट है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसका मोमेंट, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, काम दिया था, किया कि नहीं आपने, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने का, हम तो भूल गए। बोलो भाई, नहीं निकला ना? शायद आपने निकाला नहीं। चलिए अब आप जाने, आपका काम जाने, मैं एक आध थे दिखा दे रहा हूं। MGF ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट x follows p lambda, ये नोटेशन है, way to write, and px is equals to e to the power minus lambda, lambda to the power x upon factorial x, x takes value 0, 1, 2 up to infinity. Now mxt, this is equals to summation e to the power tx into, या पहले एक्सपेक्टेशन के टर्म में लिखें, एक्सपेक्टेशन e to the power tx, दिस इज फंक्शन ऑफ x, तो एक्सपेक्टेशन हम x के प्रोबेबिलिटी फंक्शन से निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू e to the power tx e to the power minus lambda, lambda to the power x upon factorial x. This is equals to x goes from 0 to infinity. This is equals to e to the power minus lambda plus to the power minus lambda, lambda to the power x. Okay, e to the power minus lambda तो बाहर हो गया, summation over x goes from 0 to infinity, lambda to the power x e to the power tx upon factorial x.
e to the power minus lambda summation lambda e to the power t to the power x upon factorial x. X goes from 0 to infinity. This is again exponential function जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो. So this is equals to e to the power minus lambda e to the power lambda e to the power t. This is equals to e to the power minus lambda 1 minus e to the power t. पॉइसन का यही आता है कि नहीं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जरा देख लें भाई हम. यही आता है सर. यही आता है. ओके. Now we got mxt is equals to e to the power minus lambda 1 minus e to the power t. Now let us differentiate it with respect to d dt of mxt. d dt of mxt, and this is equals to e to the power minus lambda 1 minus e to the power t into minus lambda, ये कट जाएगा, minus lambda minus plus e to the power t. Okay, now m dash x t is equals to t is equals to 0 is lambda, and this is expectation of x. Similarly, if you calculate this expectation of x square, so you have to differentiate it again. And ddt of mxt. तो अब ये डिफरेंशियल बाई पार्ट हो गया. पहले पार्ट का हो गया e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस e टू द पावर t इंटू लैम्डा e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस e टू द पावर t इंटू लैम्डा, इसको डिफरेंशिएट किया लैम्डा e टू द पावर t. सो जब हमने 0 पुट किया इसमें तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर 0 1 लैम्डा लैम्डा, और ये आपका हो गया 0 तो 1 लैम्डा प्लस यहां से हुआ आपका 0.001 lambda. This is equals to 2 lambda. Now variance of x is equals to, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, जबकि ये आना चाहिए लैम्डा. तो कहाँ गड़बड़ हुआ, सेकेंड डिफरेंशिएशन में. तो ये आप चेक करेंगे, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये आना चाहिए, ये गलत. और लैम्डा e की पावर t का होल स्क्वायर होगा सर सेकंड टर्म में. सेकेंड टर्म में लैम्डा e टू द पावर t का होल स्क्वायर सर यहाँ पे. हाँ सर, ये एक टर्म था ना पहले लैम्डा e की पावर t वाला. अब देखो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो कह रहे हो हम लिख दे रहे हैं. तो ये लैम्डा स्क्वायर हो गया.
यस सर। ओके, तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा हो गया। ओके, तो अब ये हो गया आपका लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, अब आ गया लैम्डा। ठीक है, अब आप थर्ड भी निकालेंगे, और मोमेंट वोमेंट अगर पढ़ाते हैं आपके गुरुजी तो आप इससे यहाँ भी मोमेंट निकाल सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो इसका फायदा समझने के लिए अब मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। लेट काट दीजिए। सपोज इन ए स्टडी suppose TB is found in 10% Indians and 5% Americans. From India, 5 persons, हाँ? नहीं सर, ये उनका है, मैथमेटिक्स वालों का है, आज भेज देंगे सर। फ्रॉम 5 persons, सर जरा सा सर 1 मिनट। कोई लड़की सर थी क्या 2018 MSc में, आरघ्यपाल, ये लड़का है? अच्छा, इसका कहीं किसी कंपनी से आया है एक मेल इसको भेजने को, वो देने के लिए, तो हमको सर याद नहीं था नाम इसका। लड़का है ना? ठीक है ना? ठीक है सर। एक थे वो गुंजन का, अच्छा चलिए सर बाद में बात होगी। गुंजन का एक ठो था, गुंजन एक जगह भेजी थी प्रोजेक्ट, और उसकी स्क्रीनिंग कमेटी में मैं गया था सर। हाँ, तो अब वो रिजेक्ट हो रहा था एक तरह से, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ भी दम से लिखा नहीं था। हाँ, तो हमने उसको रिवीजन मतलब में डलवाया है कि इसको उसको पूरा भेजा जाए, और ये ठीक ठाक करके भेजें ताकि फिर सोचा जाए। बाकी तो सब रिजेक्ट कर दिए थे सब। एक तो स्टैटिस्टिक्स का पहला ही केस था, तो वहां लड़ भिड़ के हुआ कि नहीं अब इसको रखिए आप, तो उनके पास दोबारा आएगा। हाँ, कुछ नहीं लिखी थी सर। ठीक है सर। फ्रॉम 5 persons फ्रॉम इंडिया, 5 persons were chosen at random with the replacement method. From America, 4 persons were chosen at random. ठीक है, let X denotes number of TB patient found in India. Y denotes number of TB patient found in America. What are possible values of X? जल्दी बताओ भाई, X की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? जी हेलो, 0 1 2 3 4 5 4 0 1 2 3 4 5 4
इसी तरह से y की होगी। x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? और यही है सी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बाइनोमियल होगा कि पॉइसन होगा कि हाइपरज्योमेट्रिक? पॉइसन पॉइसन पॉइसन। क्यों? क्या यहाँ पे n टेंडिंग टू बहुत ज्यादा बार रिपीट किया गया है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हाँ, कौन सा होगा? यहाँ पे 5 ही लोगों को हिंदुस्तान से चुना गया है, अमेरिका से 4 लोगों पे चुना गया, और इसमें देखा जा रहा है कि कितनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट, और चुनने का तरीका विद रिप्लेसमेंट है। तो इस x जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बाइनोमियल होगा विथ n बराबर 4। अमेरिका वालों का होगा बाइनोमियल विथ n बराबर 5। हिंदुस्तान वालों का p कितना होगा? 1/10। और 1/10 0.1। अमेरिका वालों का p कितना होगा? 0.5। 0.5। अब कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टीबी पेशेंट फ्रॉम इंडिया, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 3 टीबी पेशेंट इन इंडिया इन इंडियन स्टडी। इन 3 टीबी पेशेंट इन इंडियन स्टडी, तो आप क्या उत्तर दोगे? 4C3.1 का होल क्यूब 0.9। ओके ओके करेक्ट। इसी तरह से कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टीबी पेशेंट इन अमेरिकन स्टडी, आप बता दोगे। अब कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टीबी पेशेंट फ्रॉम बोथ कंट्री, तो क्या आप बता पाओगे इनकी सहायता से? अब कितने में से 3 पूछ रहा है? 9 में से, तो आप नहीं बता पाओगे। इसका मतलब कि अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है x प्लस वाई का, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 9 तक जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यह इन दोनों रैंडम वेरिएबल का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मिल जाए हमको, या z का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, तब हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए कि हम आपसे बोलें कि mxt किसी रैंडम वेरिएबल का कितना है, तो आप हमें रैंडम वेरिएबल का नाम बता पाओगे? इस कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? बोलिए। बाइनोमियल। हाँ बाइनोमियल है। और p बराबर कितना है? 1/2। 1/2। तो अब जैसे ही आपको हमने ये बताया, नाउ यू आर एबल टू से दैट x follows binomial n is equals to 4 and p is equals to half.
व्हाट इज एक्स नॉट क्लियर, बट इट इज पक्का है ये, इट इज काउंटिंग आउट ऑफ टोटल। 4 बार में कितनी बार ये एक्स बताएगा, 0 बार, 1 बार। हाँ ठीक है। अब सपोज करिए कि हमारे पास 2 बाइनोमियल हैं, जैसे पिछले वाले में है। एक बाइनोमियल है x1, उसका भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। x1 फॉलोज बाइनोमियल, सपोज करो कि n1 कामा p। x2 फॉलोज बाइनोमियल n2 कामा p, इसका भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा p e टू द पावर t प्लस q टू द पावर n1, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा p e टू द पावर t प्लस q टू द पावर n2। अब सपोज करो कि मुझे x1 प्लस x2 का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं मालूम है, तो मैंने इसे लिख दिया W, और हमने W का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखा। तो इस रूल के अनुसार इट इज एक्सपेक्टेशन e टू द पावर tw, this is equals to expectation e to the power t x1 plus x2. This is equals to expectation e to the power tx1 into e to the power tx2. अब अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट हो तो हम इसको लिख सकते हैं, if x1 x2 are independent, e to the power tx1 into expectation of e to the power tx2, this is equals to x1 का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इंटू x2 का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, बशर्ते कि ये इंडिपेंडेंट हो। अब इस केस में अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो यह हो गया p e टू द पावर t प्लस q टू द पावर n1 प्लस n2। तो क्या ये सम का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना, इसको देखने से पहचान पा रहे हो? इट इज अगेन, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं p टू द पावर t प्लस q टू द पावर n, n मतलब n1 प्लस n2। अगेन इट इज बाइनोमियल n कामा p या n1 प्लस n2 कामा p, जबकि x1 बाइनोमियल था, x2 बाइनोमियल था। अब हमको इनके सम का प्रोबेबिलिटी कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। एक हेल्प तो हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ने इस काम में किया, दूसरा हमें मोमेंट निकाल के दे रहा है। अब कोई पूछे कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो हम बस खाली यही जानेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, और दूसरी चीज कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोनों केस में, क्योंकि हमने यहाँ जो आपको दिखाया है दोनों को सेम रख के दिखाया है। अब आपके लिए एक्सरसाइज है कि x1 follows binomial n1 comma p1, x2 follows binomial n2 comma p2, w is equals to n1 x1 plus x2, और x1 x2 are independent, is w follows is binomial। अब आप ये बताएंगे, ठीक है? तो मैं अब बंद कर रहा हूं यहां पे। अगर आप
पूछना चाहेंगे तो आप रात में डिस्कशन कर सकते हैं। DST ठीक है, चलिए 11 लोग बचे हुए हैं। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.